Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, continuing the journey of differentiation, today we have one more topic from this section, that is differentiation of a function with respect to another function. और साथ ही में आज हम देखेंगे differentiation of infinite series. ये है हमारा टॉपिक आज. एक तो है differentiation of a function with respect to another function, और जो दूसरा टॉपिक है इसी सेक्शन से, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज. इससे पहले जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस की देखी, एक्सप्लिसिट फंक्शंस की देखी, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल वगैरह वगैरह, वहां पे हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वहां पे हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड to differentiate a function with respect to another function. कभी कभी हमारी जो जरूरत होती है, हमें क्या करना होता है, we have to differentiate a function with respect to another function. उस टाइम हम क्या करेंगे, how we will do that? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, I will take two functions f of x and g of x. Both these functions are different functions, but at the same time they are in terms of same variable, that is x. They are expressed in terms of same variable, that is variable x. Functions are different, but they depend on the variable, that variable is x. हमें क्या करना है, what we have to do, we have to differentiate f of x with respect to g of x. हमारा जो मोटो है, हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन f of x को with respect to the another function, that is g of x. Both these functions are different, but they are expressed in the same variable, that variable is x. तो हम कैसे करेंगे, we will put f of x equal to u and we will put g of x equal to v. So जब हमें डिफरेंशिएट करना हो f of x, जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा f of x को with respect to g of x, it means we have to find du by dv. हम ऐसे भी कह सकते हैं, du by dv means you have to differentiate f of x with respect to g of x. ऐसे भी हम कह सकते हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है f of x को with respect to g of x. Okay dear? In other words, we have to find du by dv, differentiation of u with respect to v, means differentiation of f of x with respect to g of x. तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि u जो है it is a function of x, so name this first, name this second. हम separately इन दो functions को differentiate करेंगे with respect to x. Differentiate first with respect to x. You will get du by dx, that is equal to, suppose f of x की जो डिफरेंशिएशन है, that is f dash x. Okay? इसी तरह यहां पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को with respect to x. तो हमारी सिचुएशन क्या आ जाएगी, dv by dx it is equal to g dash x, where g dash x is the differentiation of function g of x with respect to x. उसके बाद जब हम ये करेंगे सेपरेटली, इन दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज बोथ फंक्शंस डिपेंड्स ऑन x, बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट बट दे डिपेंड ऑन द वेरिएबल x, सो वी डिफरेंशिएट बोथ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमने यहां पे du by dx निकाला, हमने यहां पे dv by dx निकाला. उसके बाद देन वी विल यूज दिस रूल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट du by dv दिस इज इक्वल टू du by dx डिवाइडेड बाई dv by dx. इसके बाद हम ये रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो डिटरमाइन करेंगे du by dv. du by dv इज इक्वल टू du by dx डिवाइडेड बाई dv by dx. तो इस तरह से हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f of x और g of x, both functions are different but they depend on the variable x. So हमें क्या करना है, you have to determine differentiation of f of x with respect to g of x.
तो हमने एफ ऑफ एक्स को पुट किया यू के बराबर, जी ऑफ एक्स को पुट किया वी के बराबर, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया दोनों फंक्शंस को सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से हमारा निकला du by dx दैट्स इक्वल टू f डैश x, यहां से हमारा निकला dv by dx दैट इज g डैश x। उसके बाद हम ये रिजल्ट यूज करेंगे du by dv इज इक्वल टू du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx। सिमिलरली अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा g ऑफ x को विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, तो दैट इज आपको निकालना होगा dv by du। उस टाइम हम कर सकते हैं ऐसे dv by dx, बिल्कुल इसी तरीके से डिवाइडेड बाय du by dx। डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ f of x with respect to f of x. Okay dear, let's have an example. एक दो एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिससे ये कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट log of sin x with respect to रूट cos x। इससे पहले जब हम डिफरेंशिएशन करते थे we differentiate log of sin x with respect to x और we differentiate root cos x with respect to x। यहां पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, you have to differentiate log of sin x with respect to root cos x। तो कैसे करेंगे, let u be equal to log of sin x and v be equal to root cos x। इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। फंक्शंस आर डिफरेंट, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये रूट फंक्शन है, रेडिकल फंक्शन है। फंक्शंस आर डिफरेंट बट दे बोथ डिपेंड ऑन वेरिएबल एक्स। ये फंक्शन भी वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करती है और ये फंक्शन भी वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करती है। Though both belong to different categories, this is algebraic function, and this is logarithm function which belongs to the category that is transcendental functions। जो हमने already understand किया है कि functions have been categorized into three types। One is known as algebraic functions, second one is known as transcendental functions, and third one is known as piecewise functions। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा du by dx इज इक्वल टू, नाउ लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग की डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन ये हमें ऑलरेडी पता है, लॉग ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, इट इज 1 by function into differentiation of function। very important log of function की differentiation, it is 1 by function into differentiation of function। okay जिगर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, log of function it is 1 by function into differentiation of function, that's cos x। तो हमारा du by dx it will be equal to cos by sin, that is cot x। सिमिलरली यहां पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा dv by dx, रूट ऑफ फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा है, रूट ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन, रूट ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 1 by twice रूट ऑफ फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में ऑलरेडी हमने ये इसको नोट किया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन इट इज इक्वल टू 1 by twice रूट ऑफ फंक्शन इनटू f डैश x। तो रूट ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन 1 by twice रूट ऑफ cos x into differentiation of cos x, that is minus sin x। So I can write it is minus sin x divided by twice root cos x। ये निकला dv by dx। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंशिएट करना है log of sin x with respect to root cos x, means we have to obtain du by dv। हमें निकालना है du by dv। जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to v, that will be equal to
du by dx divided by dv by dx, and that is simply equal to du by dx, it is cot x, divided by dv by dx, it is minus sin x divided by twice root cos x, or I can write it is minus twice root cos x. Now cot x 1 by sin is cosec x. So this is our required differentiation, du by dv. Okay dear, so this was differentiation of a function with respect to another function. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम यहां पे देखेंगे इस टॉपिक पे. बिल्कुल आसान टॉपिक है ये. One more example. Example number 2. Differentiate sine inverse of 2x divided by 1 plus x square with respect to tan inverse x, where x lies between -1 and +1. हमें डिफरेंशिएट करना है sin inverse 2x divided by 1 plus x square with respect to tan inverse x. Okay, ये है sin inverse, ये है tan inverse. Both are different functions but both depend on the variable x. Okay dear, तो बिल्कुल let u be equal to sin inverse of 2x, जैसे हमने पहली एग्जांपल में किया, divided by 1 plus x square, and v be equal to tan inverse of x. इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम हम सेकंड. नाउ हमने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन की है, और वहां पे हमने देखा कि हम कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं. वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी वो ये कि एक तो हमें जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होगा, एक तो हमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी डिफरेंशिएशन हमें याद रखनी है. और साथ साथ जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा या आगे जाके अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा, उसके लिए हमें जरूरी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वहां पे हमने नोट किए, उनको भी हमें रिमेंबर करना है, यानी याद रखना है, क्योंकि वही आइडेंटिटीज हम इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. तो आइडेंटिटी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आइडेंटिटी जब हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, जब हम एक सुटेबल आइडेंटिटी यूज करेंगे, उस आइडेंटिटी से जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सिंपल बन जाएगी, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? वी नो दैट यहां पे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा. तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? इट इज tan इनवर्स ऑफ x. तो u बन जाएगा, इट इज sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. And we already know it that this is equal to sin 2 theta. Sin 2a, it is equal to, in terms of tan, sin 2a is equal to twice tan a divided by 1 plus tan square a. Sin 2a की एक और फॉर्मूला है in terms of sin and cos. Sin 2a is equal to twice sin a cos a. Okay. तो sin 2 theta, it is twice tan theta divided by 1 plus tan square theta. तो sin inverse of sin x, it is equal to x. So u be equal to 2 times theta, it is tan inverse of x. अब देखिए ये सिंपल बन गया. Now differentiate both sides with respect to x. ये बन जाएगा du by dx, it is equal to 2 times tan inverse x की डिफरेंशिएशन 1 divided by 1 plus x square. तो यहां पे देखिए दोनों चीज इस्तेमाल हो गई. एक, आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी याद रखने हैं, यहां पे इस्तेमाल हो गया.
tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। दूसरा कि आपको आइडेंटिटीज भी जरूरी याद रखनी है, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो यहां पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी sin 2 थीटा इट इज इक्वल टू ट्वाइस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या होता है, आइडेंटिटी से जो ये कॉम्प्लेक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी ये सिंपल में कन्वर्ट होगी और उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ओके डियर, अब आते हैं यहां पे डिफरेंशिएट। यहां पे ऑलरेडी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो यहां पे आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज dv by dx tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, मींस यू हैव टू फाइंड du by dv, ये हमें निकालना है। और वी हैव du by dv इट इज इक्वल टू du by dx डिवाइडेड by dv by dx। सब्स्टिट्यूट कीजिए, du by dx इट इज 2 डिवाइडेड by 1 प्लस x स्क्वायर, dv by dx it is 1 divided by 1 plus x square and that's equal to 2. So हमारा du by dv it is equal to 1 plus x square and 1 plus x square will cancel. ये थी दूसरी एग्जाम्पल। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था पहला जो टॉपिक था, ये था डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब हम आते हैं इसी टॉपिक पे, जो दूसरा टॉपिक है इसमें से, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। ओके डियर, एक और टॉपिक यहां पे देखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन ऑफ infinite series। Infinite series, sometimes the variable y is given as an infinite series and we are asked to find dy by dx। कभी क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल y, जब हम देखते हैं जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल sin x, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। कभी जो y होता है इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन बट दैट फंक्शन इज एन इनफिनाइट सीरीज, दैट फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज। तो उस टाइम हम कैसे dy by dx निकालेंगे? ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, हमें यह फैक्ट कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी हम एक इनफिनाइट सीरीज से कोई टर्म डिलीट करेंगे तो वो इनफिनाइट सीरीज अनइफेक्टेड रहेगी, यानी उस पर असर नहीं पड़ेगा। जो इनफिनाइट सीरीज होती है, अगर हम उस सीरीज से एक टर्म डिलीट करेंगे, क्या वो फाइनाइट सीरीज बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल वो कंटिन्यू इनफिनाइट सीरीज ही रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम एक इनफिनाइट सीरीज से एक टर्म डिलीट करेंगे तो उससे वो इनफिनाइट सीरीज जो है अनइफेक्ट नहीं हो जाएगी, यानी उस पर असर नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे हम देखेंगे यहां पे एक एग्जांपल के जरिए से, हमारे पास वेरिएबल y है, it is given as infinite series like this, under root of sin x plus under root of sin x plus under root of sin x plus so on up to infinity. Y is a function of x, but here that function is expressed as an infinite series, Okay dear? तो यहां पे हम ये फैक्ट यूज करेंगे कि जब हम एक इनफिनाइट सीरीज से एक टर्म डिलीट करेंगे तो उस इनफिनाइट सीरीज पे असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम करेंगे, आई कैन राइट दिस इज y इक्वल, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy by dx, हमें dy by dx निकालना है यहां पे। तो हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो लाइक दिस, y इज इक्वल टू sin x plus under root of sin x plus under root of sin x plus so on up to infinity. Okay dear? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is under root of sin x
प्लस, उसके बाद इस साइन एक्स को मैंने सेपरेट किया, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, उसके बाद अगेन दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इट इज अगेन इनफिनाइट सीरीज, दिस इज अगेन इनफिनाइट सीरीज। तो इसकी जगह हम, क्योंकि ये हमने y के बराबर दिया है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे y, क्योंकि इस पे असर नहीं पड़ेगा, एक टर्म डिलीट करने से, एक टर्म कम करने से इस सीरीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा y स्क्वायर, इट इज इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, y को यहां लाएंगे, इट इज y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y dy by dx माइनस y की डिफरेंशिएशन dy by dx sin x की cos x। नाउ dy by dx कॉमन, यहां पे बच गया 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। So हमारा dy by dx that will be equal to cos x divided by 2y minus 1. This is the working rule for differentiating an infinite series. हम कैसे एक infinite series को differentiate करेंगे, ये थी एक एग्जाम्पल जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी एक चीज याद रखनी है, जब आपको इनफिनाइट सीरीज की डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो ये कि इनफिनाइट सीरीज से अगर हम एक टर्म डिलीट करेंगे वो अनइफेक्ट रहती है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किया, ये था अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये टर्म हमने सेपरेट की तो इस सीरीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दिस सीरीज इज अगेन इनफिनाइट सीरीज, और ये इनफिनाइट सीरीज y के बराबर है, तो इसलिए यहां पे यहां से यहां तक हमने पुट किया y के बराबर, उसके बाद स्क्वायरिंग की और उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन। ओके डियर, सो दिस वाज डिफरेंशिएशन ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज। हम एक और एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स हम और देखेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेंगे यहां पे। y is equal to, example number 2, y is equal to x power x power x power so on up to infinity. Y is a function of x, and again this function is an infinite series, it's expressed as an infinite series. हमें क्या करना है, we have to find dy by dx, हमें dy by dx निकालना है। अगेन जो अभी हमने किया पहले एग्जांपल में, बिल्कुल वही करेंगे, वही कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि एक टर्म डिलीट करने से जो इनफिनाइट सीरीज है वो अनइफेक्ट रहती है, यानी उस पर असर नहीं पड़ता है, अनइफेक्ट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां से एक टर्म डिलीट करेंगे, डिलीट कैसे, इस x को हम ऐसे ही रखेंगे, जो बाकी सीरीज रह जाएगी x पावर x पावर x पावर अप टू इंफिनिटी, दैट्स अगेन इनफिनाइट सीरीज, और वो इनफिनाइट सीरीज किसके बराबर है, दैट इज y, तो यहां पे हम लिखेंगे x पावर y। नाउ अप्लाई लॉग on both sides, ये बन जाएगा log y, यहां पे बन जाएगा log m power n, that's y times log x, differentiate both sides with respect to x, log y की differentiation 1 by y dy by dx, यहां पे product rule y as it is, log x की differentiation 1 by x plus log x as it is, y की differentiation dy by dx। जिन टर्म्स के साथ dy by dx है उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, ये बन जाएगा 1 by y dy by dx माइनस log x dy by dx is equal to y by x। Now dy by dx common, 1 by y minus log x multiplied by dy by dx is equal to y by x, or dy by dx it is equal to y by x divided by 1 by y minus log x। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टाइम्स 1 minus y log x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन।
तो इस तरीके से हम जब हमारे पास इनफिनाइट सीरीज होगी तो हम इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि एक टर्म डिलीट करने से, इनफिनाइट सीरीज में एक टर्म डिलीट करने से फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया दोनों एग्जांपल्स में। पहली एग्जांपल में भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया और दूसरी एग्जांपल में भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया। एक और एग्जांपल देखेंगे एक वन मोर एग्जांपल। टेक लास्ट एग्जांपल फ्रॉम दिस टॉपिक। बिल्कुल आसान टॉपिक थे दोनों। आज का लेक्चर जो था बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान टॉपिक थे दोनों टॉपिक्स। एक था डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, दूसरा था डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज में एक और एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल नंबर 3। y equal to x plus 1 divided by x plus 1 divided by x plus 1 divided by x plus so on up to infinity. We have to find, हमें क्या करना है, dy by dx। हमें dy by dx निकालना। Again, y is a function of x और जो ये function है, it has been expressed as an infinite series। तो कंसेप्ट वही इस्तेमाल करेंगे कि एक टर्म डिलीट करने से इनफिनाइट सीरीज पे असर नहीं पड़ता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन में देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। y इज इक्वल टू x, इसको सेपरेट करेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, उसके बाद जो सीरीज है दैट्स अगेन द सेम सीरीज, जो यही सीरीज है वही सीरीज बनती है अगेन। इस चीज को जब हम डिलीट करेंगे x प्लस 1, तो बाकी जो ये सीरीज बनती है दैट्स अगेन द सेम सीरीज विच इज इक्वल टू y। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज y। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल x इंटू y, दैट्स xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई y। y स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1 और y स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब कीजिए डिफरेंशिएशन। ओके, दिस इज y स्क्वायर माइनस xy इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा 2y dy बाई dx माइनस, यहां पे प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, y की dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन 0। ओके, dy बाई dx को कॉमन, तो ये बन जाएगा 2y माइनस x टाइम्स dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू y। तो dy बाई dx it is equal to y divided by 2y minus x। Very simple. So this was the last example on differentiation of infinite series। तो ये थे आज हमारे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बिल्कुल आसान टॉपिक्स थे। एक था डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन और जो दूसरा था दैट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज। तो इसी तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला लेक्चर होगा, दैट विल बी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। टिल देन